So now we will be understanding the code for our merge sort. So here I am going to make a use of certain variables. I am going to make a use of an array. एक मैं array ले रहा हूँ of type integer. So in order to declare an integer array, I am going to make a use of int, and the name of my array is ARR, and the size of my array would be 10. And another variable I am going to make a use is n. So let's say मैं एक बार array के size को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ. I am going to make a use of it 50. Now here I am going to ask from a user enter the size of an array. For this I am going to make a use of a cout statement, and within this cout I am going to ask from a user enter the size of an array. And I am going to take that value within my variable n. तो जैसे ही मेरे को यूजर साइज बता देगा, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द एलिमेंट्स फ्रॉम यूजर कि एंटर द एलिमेंट्स इन योर एरे. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ काउट स्टेटमेंट. एंटर एलिमेंट्स इन एन एरे. And in order to populate an array, we have to make a use of a for loop. So यहाँ पर एक मैं variable declare कर देता हूँ with the name I. So let's say I'm going to make a use of my for loop for I is equal to 0, I less than n, and I plus plus. And within this I'm going to make a use of a cin statement, ARR of I. And after that I'm going to make a use of an end line statement. And if you want to display the elements of an array, so you can make a use of a cout statement. Let's say array elements are. And within this you have to make a use of a for loop in order to display the elements of your array. So I'm going to make a use of that for loop for I is equal to 0, I less than n, and I plus plus. And within this I'm going to make a use of a cout statement, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराता हूँ array के elements. Let's see. So after displaying the array elements, I am going to display the elements in a sorted order. Sorted order में मैं array दिखा दूँगा. So I am going to make a use of a cout statement, and within the cout statement, I am going to use sorted array after merge sort. So I am going to write this statement. Sorted array after merge sort. So before displaying the sorted array, you have to divide your array into two halves. आपको अपने array को दो halves में divide करना है. For this, I am going to make a use of a function. Let's say यहाँ पर एक मैं function बनाऊंगा, और इस function का नाम मैंने दे दिया merge sort. And I am going to make this function as a parameterized function. तो मैं सबसे पहले इसमें एक array पास कर देता हूँ. ARR क्या है? It is my array. यहाँ पर मैं दो वेरिएबल और पास करता हूँ, एक p और एक let's say r. अभी p और r क्या करेंगे? I'll show you. इधर डिक्लेयर करते हैं. ठीक. So let's say here I am going to declare two variables p and r. Both are type of an integer. दोनों integer type के मैंने variable यहाँ पे लिए हैं. And after populating my array, I am going to initialize my p variable with a value 0 and my r variable with n minus 1. n क्या है? The size of your array element. जो आप यूजर से पूछोगे enter the size of an array, जब वो यहाँ पर करा देगा इसको populate.
5 डालेगा तो p के अंदर अब क्या, r के अंदर क्या वैल्यू आएगी 4, 6 डालेगा तो r के अंदर क्या वैल्यू आएगी आपकी 5, ओके। और आपका एरे भी कहाँ से बनता है 0 से लेके 5 तक का, अगर यूजर 6 डालेगा तो ओके। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए, p इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू n-1। So let's say here I have called my function, बट अब इस फंक्शन कहीं पे मैंने डिक्लेरेशन करी या डिफाइन किया नहीं, मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिक्लेयर दिस फंक्शन, ओके। इस फंक्शन का लेट्स से मैं रिटर्न टाइप रख रहा हूँ void, ओके, एंड द नेम ऑफ माय फंक्शन इज merge sort, एंड दिस फंक्शन इज अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो पहला पैरामीटर जो है रिसीव कर रहा है वो एक एरे टाइप का रिटर्न रिसीव कर रहा है, दूसरा पैरामीटर एक इंटीजर टाइप का रिसीव कर रहा है, और थर्ड पैरामीटर क्या रिसीव कर रहा है, इंटीजर टाइप का। यही पैरामीटर्स आपने दिए और यही पैरामीटर दिस फंक्शन विल गोइंग टू रिसीव। सो लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस फंक्शन फॉर माय स्टेप 1। हमारा स्टेप 1 क्या है, लेट्स से वी हैव टू डिवाइड अवर एरे इनटू 2 हाफ्स। आपको किसमें एरे को डिवाइड करना है, इनटू 2 हाफ्स। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय इफ स्टेटमेंट, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ इफ माई p इज लेस देन r। आपका p लेस देन होगा r से, कंडीशन क्या रहेगी आपकी, ट्रू रहेगी फर्स्ट टाइम में। लेट्स से p में अभी वैल्यू आएगी 0 और r में क्या वैल्यू रिसीव होगी। सपोज करो यूजर ने n का साइज डाला है 5, तो 0 इज लेस देन 4, कंडीशन है मेरी ट्रू। सो यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ वेरिएबल इंटीजर, q के नाम से एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ in order to determine my mid position पता लगाने के लिए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, लेट्स से p प्लस r डिवाइड बाय 2। तो क्या स्टेटमेंट से मेरे को मिडिल पोजीशन पता लग जाएगी। p सपोज करो 0 है, r आपका 4 है, तो 4 डिवाइड बाय 2। तो लेट्स से अगर यूजर ने एक साइज डाला 7, तो अभी आपका p क्या है 0 और आपका r क्या होगा। अब यहाँ पर यूजर आप एलिमेंट्स काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 माइनस 1 आपका r की वैल्यू क्या हो गई 7। सो 0 प्लस 7 डिवाइड बाय 2। तो लेट्स से अगर आप 7 को डिवाइड बाय करो 2 से, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 3.5 समथिंग। तो बट हमने यहाँ पर डबल तो यूज किया नहीं, इंटीजर यूज किया, तो हमारी मिड पॉइंट वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अंडरस्टूड कि क्यू में अब आपके क्या पास क्या आ जाएगा, क्यू में यू विल गेट अ वैल्यू कॉल्ड एज 3। चलो करते हैं। Now after that I'm again going to call my merge sort. अब यहाँ पर मैंने बोला था that we are going to make a use of a recursion. Recursion क्या होता है, the function that call itself. So I'm going to make a use of merge sort. And this time I'm going to pass two array. यहाँ पर मैं पास करता हूँ ARR, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ एक Q, लेट्स से एक में पास करता हूँ P और एक में पास करता हूँ Q। अब यहाँ से क्या होगा, आपकी जो वाली एक और 2 हाफ्स बनेंगे वो भी सही मर्ज सॉर्ट परफॉर्म होगी, तो वो भी 2 हाफ्स में बच जाएगा। अभी बताता हूँ किस तरीके से होगा। एंड हियर आई एम गोइंग टू अगेन मेक अ यूज ऑफ माय मर्ज सॉर्ट ARR Q प्लस 1, और इधर लेट्स से मैं पास कर देता हूँ एक वैल्यू R पास कर देता हूँ। So let's say I am just copying this statement and I am considering this graph. Let's say user ने कुछ इस तरीके का आपको इनपुट दिया है, तो मैं एक बार ये हटा देता हूँ। लेट्स से आपने सबसे पहले यूजर से क्या पूछा है, एंटर द साइज ऑफ एन एरे एंड दैट वैल्यू यू आर स्टोरिंग इन अ वेरिएबल कॉल्ड एज n. नाउ आई एम द यूजर एंड आई हैव एंटर्ड अ वैल्यू
8 कि लेट्स से आई वांट द साइज ऑफ माय एरे एज 8। तो मेरा कुछ एरे इस तरीके से बनेगा और मैंने कुछ ये वाले एलिमेंट्स डाल दिए। इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ मर्ज सॉर्ट यू हैव टू डिवाइड दिस एरे इनटू 2 हाफ्स। आपको इसमें 2 हाफ्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट। Just make a use of this is a code which is going to divide your array into 2 halves। इससे पहले यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लिया है p। आपने p को किसके साथ इनिशियलाइज कराया है? 0 के साथ। और आपने r को किसके साथ इनिशियलाइज कराया है? n-1। तो n क्या है मेरा? 8, 8 minus 1 7। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने चेक करी कंडीशन क्या 0 लेस देन है 7 से। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। और इसका एग्जीक्यूट होता है तो उसे गिवन कंडीशन क्या रहती है? ट्रू रहती है। सो सबसे पहले वो यहाँ पर आएगा इस स्टेटमेंट में। यहाँ पर आपने क्या किया? p प्लस r 0 प्लस 7 7। सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू हियर इज, यहाँ पर आप इस तरीके से कर रहे हो 7 प्लस 2 या सॉरी यहाँ पर आप कर रहे हो 0 प्लस 7। p आपका 0 है, r आपका 7 है एंड यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस विद 2। तो यू विल गेट अ वैल्यू समवट लाइक दिस 3। क्योंकि आपने डबल वैल्यू तो यूज करी नहीं, आपने इंटीजर यूज किया है, तब आपका मिड पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा? 3। ओके, तो Q में अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई है? Q में आपके पास एक वैल्यू आ गई है 3। ये वाला स्टेप समझ में है कि ये क्या कर रहा है? ठीक है, अब आगे करते हैं। अब इसके बाद अब आपके पास हम 2 एरे बन जाएंगे। आपके पास एक बन जाएगा एरे 1, ये वाला। आपके पास एक ये एरे बन जाएगा और लेट्स से आपके पास एक ये वाला एरे बन जाएगा। ये एरे कब डिवाइड होंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 एरे आपके पास बन जाएंगे। अंडरस्टैंड? लेट्स से अभी बनेंगे किस तरीके से, ये देखो ध्यान से। अब आप दोबारा यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो? एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो, मतलब रिकर्शन फंक्शन आप कॉल कर रहे हो। तो दिस फंक्शन है अगेन गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। तो p की वैल्यू क्या आपको रिसीव होगी? इसको 0 और r की वैल्यू भी क्या रिसीव होगी? इसको अभी 7, जो आपकी रहेगी। ठीक है, अब दिस टाइम यू आर गोइंग टू पास एन एरे। एरे में आपने पास क्या कर दिया? p क्या आपका 0 और q क्या आपका 3। तो यहाँ पर आपका एक बन जाएगा मर्ज सॉर्ट। एक आपका एरे बन जाएगा 0 से लेकर 3 तक। यहाँ तक आपका एक एरे बन जाएगा एरे 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3। इसके बाद अब आप यहाँ पर आओ, ARR Q प्लस 1। Q की वैल्यू अगर आप इंक्रीमेंट कर दो तो ये बन जाएगी आपकी, कब तक चलेगी? आपके 8 तक चलेगी। मिल गया आपको 2 सॉर्टेड एरेस। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ इसमें। नाउ लेट्स से आपके 2 स्टेप आपने फॉलो कर दिए। यू हैव टू डिवाइड योर एरे इनटू 2 हाफ्स आपने कर दिए। नाउ यू हैव टू मर्ज देम इनटू थर्ड एरे इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। फॉर दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन अनदर फंक्शन। यहाँ पर अभी हम एक और फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का लेट्स से मैं नाम देता हूँ मर्ज, और इसको मैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना देता हूँ। एक ARR वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, एक लेट्स से मैं इसको वैल्यू देता हूँ p की, q की और लेट्स से r की। वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ओवरराइड कर दूंगा अभी। तो लेट्स से यहाँ पर आपने एक फंक्शन कॉल किया मर्ज, बट ये कहीं पर भी आपने बनाया। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस फंक्शन। सो यहाँ पर जब भी मेरा फंक्शन बंद हो रहा है, यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस फंक्शन मर्ज। क्या क्या पैरामीटर आप भेज रहे हो? आप एक इंटीजर टाइप का इसको एरे भेज रहे हो, आप इसको एक p वैल्यू भेज रहे हो इंटीजर टाइप की, एक आप q वैल्यू भेज रहे हो और एक आप r वैल्यू भेज रहे हो। So let's say I'm going to make this function as a void. Now let's say within this function I'm going to make a use of a third array. आपको एक थर्ड एरे से बनाना पड़ेगा। So I'm going to make a use of this third array और इसका let's say मैंने नाम दे दिया C और इसका let's say मैं साइज देता हूँ अराउंड 10 देता हूँ। Now here I'm going to make a use of variables. कुछ मैं variables बना रहा हूँ। एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर i
और इसको इनिशियलाइज करा रहा हूँ विद द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू मैंने किससे भेजी? इंटीजर आई में। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर जे, और जे में मैं कौन सी वैल्यू भेज रहा हूँ? लेट्स से मैं भेज रहा हूँ q प्लस 1 की वैल्यू। ये भी समझ में आ जाएगी क्यों हम ऐसे वैल्यू पास कर रहे हैं। एंड द थर्ड वेरिएबल विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इंटीजर k, इसको भी मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ विद p। ये भी समझ में आ जाएगा आपको क्यों। So let's say after declaring the variables, I am going to make a use of a while loop. मैं यहाँ पर while loop का use करने वाला हूँ. So here I am going to make a use of this while loop. And within this while loop, I am going to pass two conditions. एक मैं condition देता हूँ I आपका होना चाहिए less than equal to q. ये कौन सा सिंबल होता है हमारा? एंड का। एंड कब एग्जीक्यूट होता है? व्हेन बोथ ऑफ कंडीशन यू आर ट्रू। जब आपकी ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी और ये जो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ ये वाली भी ट्रू होगी, देन योर दिस व्हाइल लूप विल गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पर मैं देता हूँ j लेस देन इक्वल टू r। एंड का सिग्निफिकेंस ये होता है जब इसकी दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगी तभी ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा थर्ड एरे मैंने लिया सी ऑफ के, अभी के की मेरे पास 0 वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा दिया, ये मतलब एरे का जो मेरा ith इंडेक्स है वो मैंने पुट करा दिया इनटू सी ऑफ के। किस तरीके से करा है अभी हम चेक करते हैं। आई एम गोइंग टू इंक्रीमेंट द आई की वैल्यू i plus 1 and finally I am going to increment the value of k as well. अब यहाँ पर ये जो मैंने कंडीशन है, ये जो तीन स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट करी है, आई एम गोइंग टू पुट देम इन अ कंडीशन। एक कंडीशन में यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ, तब ये मैं कंडीशन ये जो स्टेटमेंट्स है तब एग्जीक्यूट करूंगा। और कंडीशन में देता हूँ अगर ARR का I is less than your ARR of J, then execute these three conditions. Else I am going to execute a statement. else में मैं क्या करा देता हूँ, लेट्स से जो मेरा C में जो K पोजीशन पे है उसमें मैं इंसर्ट कराता हूँ ARR ऑफ J। and I am going to increment the value of my J and I am going to increment my value of K as well. Now within this I am going to make a use of another while loop. अब ये while मैं किसके लिए दूंगा? I less than equal to q के, that's it. while I less than equal to q के लिए। तो यहाँ पर ये मेरे को डबल कोट्स के ब्रैकेट्स की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ सी ऑफ के इज इक्वल टू, यहाँ पर पास करता हूँ मैं ARR का I की वैल्यू मैं करता हूँ एक बार इंक्रीमेंट और के सो लेट्स से एक और मैं इसमें कंडीशन लिख रहा हूँ वाई जे लेस देन इक्वल टू आर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सी ऑफ के इज इक्वल टू ARR ऑफ
जे की वैल्यू को मैं कराता हूँ एक बार इंक्रीमेंट j+1 और k की वैल्यू कराता हूँ k+1।